we are going to discuss some similar chemical terminologies. For example, isotopes क्या होते हैं, isobars क्या है, isosteric क्या है, isomers, isoelectronic species and isomorphs. Beta, how can we distinguish in between these chemical terms? Let's start with the isotopes. Beta, isotopes क्या होते हैं? These are the atoms of the same element. This point is important कि same element के different atoms होते हैं. They have same atomic number but different mass number. And we all know कि atomic numbers क्या होते हैं. Because हर atom का एक center होता है, that is called nucleus. Inside the nucleus we have protons and neutrons. बेटा जो protons होते हैं, that is actually giving us the information about the atomic number. That's why it is also known as proton number. And the mass number is the sum of protons and neutrons. The sum of protons और neutrons को हम कहते हैं mass number. बेटा अगर atomic number same है, it means we have same number of protons. And beta, these are the atoms, or atoms are neutral because they have same electrons and same protons. अगर प्रोटॉन ज्यादा होते तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो it will carry a negative charge. But in atom we have equal number of protons and electrons. So बेटा अगर प्रोटॉन सेम है तो it means we have same number of electrons. और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो they will have same electronic configuration. उनकी क्या चीज सेम होएगी बेटा? Electronic configuration. Electronic configuration means the distribution of electrons in various shells or subshells. जैसे कि K, L, M, N shells होते हैं, S, P, D, F, we have these subshells. तो इनमें same electronic configuration होएगी इन तमाम atoms की, ठीक है? Because they have same number of electrons, तो उनकी arrangement भी same ही होएगी, ठीक है? Distribution भी same होएगी. So when we have same electronic configuration, when we have same number of electrons, तो बेटा इन पे एक प्रॉपर्टी जो हमारी डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी. सो वी हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होएगी. अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे सो we'll have the same chemical property. तो क्या चीज डिफरेंट होती है? वी डिस्कस कि मास नंबर डिफरेंट है. बेटा मास नंबर में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट है? दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक है? सो वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो इट मींस वी हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? वी हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी कैन रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द डेंसिटी, विद द बॉइलिंग पॉइंट. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? मैस इटसेल्फ इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, यानी कि जो एटम्स होंगे एक ही एलिमेंट के, दे विल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, they will have different densities. और इसके साथ साथ रेट भी उनके डिफरेंट होएंगे, क्योंकि रेट डिपेंड कर सकता है कोलिजन थ्योरी पे, और इट कैन ऑल्सो रिलेट विद द मास. तो वी कैन राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो कि रेट कुड बी डिफरेंट. रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी डिफरेंट. बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है इट मींस दैट इज लेस स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होता है दैट इज लेस रिएक्टिव. तो इट मींस अगर रेट डिफरेंट हो सकते हैं तो स्टेबिलिटी भी उनकी डिफरेंट होएगी. ऑलराइट जी. So beta, I have used a few examples over here. Hydrogen, that is very common example for isotopes.
Hydrogen has 3 atoms. Hydrogen 1, hydrogen 2 and hydrogen 3. Beta, hydrogen 1 means its mass is 1. Hydrogen 2, its mass is 2. Hydrogen 3, that is called tritium. Hydrogen 2 is called deuterium. Hydrogen 1 is called protium. Protium के पास कितने protons हैं? It has only 1 proton. Deuterium has only 1 proton. Tritium has only 1 proton. तो तीनों isotopes में we have same protons. कितने electrons होंगे? 1 1 1. Because protons और electrons always equal to each other in an atom. तो electrons भी same हो गए. ठीक है? Due to the same electrons, they will have same electronic configuration. चाहे we are using protium, deuterium or tritium, they will have same chemical properties. All right? इसमें neutrons कितने हैं? In the first one, in the protium, we have 0 neutron. Neutrons कैसे calculate करते हैं? 1 minus 1. Mass number में से minus कर दिया जाए atomic number. In this way, we can calculate the number of neutrons. N equals to 2 minus 1, that will 1. ठीक है? So neutrons यहाँ पे कितने आ गए? 2. So बेटा, from this thing, we have derived another expression कि हमने कहा था कि physical properties different होती हैं. If we have different masses, so we have protium, deuterium and tritium. All these 3 atoms have different mass. So सबसे ज़्यादा mass किसका है? 3 का. So that's why we will have the highest boiling point of that atom which will be greater in mass. जो ज़्यादा heavy होएगा. ठीक है? Heavy होने की वजह से क्या है? Boiling point बेटा depend करती है intermolecular forces पे. The force of attraction in between the molecules. It depends upon, this is the strength. ठीक है? Intermolecular force. जो कि boiling point इस पे depend कर रहा होता है. तो intermolecular force ज़्यादा है H3 में. So that's why it will have the highest boiling point among these 3. ठीक है? अगर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन has also 3 isotopes, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो बेटा कौन सा ऐसा एटम है कार्बन का इन तीनों में से which is having the highest boiling point? तो जो ज़्यादा हैवी होएगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होएगी, सो उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा. ठीक है? सो आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? तो रेट स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं. नाउ कम ओवर दिस पॉइंट, स्टेबिलिटी. बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस किया इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ कम ओवर द स्टेबिलिटी. बेटा यहां पे एक स्टेबल आइसोटॉप मैंने आपसे पूछा है. आउट ऑफ दीज 3, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में से विच वन इज मोर स्टेबल? तो स्टेबिलिटी के लिए एक टेक्निक आपको बता रहा हूं बेटा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक रेशियो निकाल लिया करो. ठीक है? फर्स्ट आइसोटॉप में देखें, अगर ये 1 होएगी, सो इट इज स्टेबल इन दिस केस. ओके, इट बिकम्स stable. If the ratio of the number of neutrons to the number of protons is greater than 1, neutrons और protons की ratio, if it is greater than 1, तो वो या तो unstable हो जाता है और radioactive हो सकता है. ठीक है? यानी कि stability decreases when the ratio increases to the 1, तो it becomes unstable या radioactive हो जाएगा. ओके, अनस्टेबल हो गया. सो अब हमने इसी रूल को यूज करना है और बताना है विच वन इज मोर स्टेबल. इन द फर्स्ट आइसोटॉप ऑफ कार्बन वी हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1. ठीक है? इन द सेकेंड आइसोटॉप वी हैव 7/6, इट इज ग्रेटर देन 1. सो बेटा 1 का आंसर कहां पे आया? फर्स्ट वाले में. सो दिस इज the most stable isotope of carbon, carbon 12. ठीक है? Because इसकी N/P ratio is equals to 1. So we can use this concept for the stability of isotopes. All right? Now
we are going to discuss this point, rate of reaction. Let's have a look on this question. Which of the following carbon dioxide is formed with the maximum rate? बेटा रेट किसका ज्यादा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है हर रिएक्शन में, आइदर वी आर यूजिंग कार्बन 12, कार्बन 13 या कार्बन 14. दीज आर द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन ना. तो बेटा तीनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो जाएगा, बट सबसे कम मास किस में है? इन द फर्स्ट वन. तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला है, ड्यू टू द लाइटर मास, दिस वन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड will show the maximum rate. सबसे जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी. So we'll move with the A option. Reason क्या है? It is lighter in mass. कार्बन 12 है, ठीक है. So let's move on to the next concept, isobars. बेटा isobars क्या होते हैं? Atoms of the different elements. Now I am using the term atoms of the different elements. बेटा isotopes क्या थे? Atoms of the same element. Isobars क्या हैं? Atoms of the different elements whose mass is same but atomic number is different. तो बेटा this is somewhat opposite with the isotope. Isotope और isobars दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. यहां पे सेम एटम्स थे. इन आइसोबार्स वी हैव डिफरेंट एटम्स. इन आइसोटॉप्स वी हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट इन आइसोबार्स वी हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इन आइसोटॉप वी हैव डिफरेंट मास नंबर, बट इन आइसोबार वी हैव सेम मास नंबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और आपके पास नाइट्रोजन है. कार्बन 6, nitrogen 7. These are the atomic numbers. तो बेटा atomic number दोनों में different है. In the first option we have 7, in the second option we have 6. ठीक है. But in both atoms we have same mass number जो कि 14 है. Mass number दोनों में क्या है जी? That is 14. So that's why they are called isobars of each other. तो बेटा इन दोनों एटम्स की कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है? टेल मी दिस थिंग. विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? दे हैव सेम मास नंबर ना. सो मास नंबर अगर सेम होता है तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मींस दे विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. बिकॉज एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे. प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वी कैन रिलेट द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं, इट मींस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. ऑलराइट. और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बिकॉज वी हैव सेम मास फॉर दीज टू स्पीशीज. All right. So let's have a look on the second MCQ that is also related to the first topic, isotopes, which is not a monoisotopic species. Mono means one. Isotopic species यानी कि these are the isotopes जिनके एक ही आइसोटोप होंगे. और क्वेश्चन है which one is not a monoisotopic species? कौन सी इनमें से ऐसी ऑप्शन होएगी जिसका एक आइसोटोप नहीं है, एक से ज्यादा होएगा? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज टिन, सेकंड ऑप्शन इज गोल्ड, थर्ड ऑप्शन इज आयोडीन, फोर्थ ऑप्शन इज फ्लोरीन. तो बेटा एक एक्रोनिम आपको यहां पे बता रहा हूं. इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. जिफ होता है ना, शॉर्ट वीडियोस को हम कहते हैं जिफ. गोल्ड, आयोडीन एंड फ्लोरीन, दीज आर मोनोआइसोटॉपिक स्पीशीज. तो इन तीनों का एक एक आइसोटॉप है. ऑलराइट. सो इजीली हमने इसको याद कर लिया जिफ. और टिन हैज 11 आइसोटॉप्स.
सो ये भी एक्चुअली itself is an important MCQ. टिन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 11 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। सो बेटा कुछ अदर इसी से रेलेवेंट जो मेमोरी बेस्ड आइसोटॉप्स के क्वेश्चंस हैं, आई हैव मेंशन्ड हियर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी आइसोटॉप्स? इट हैज 3, just like hydrogen and carbon. Nickel has 5 isotopes. Calcium and palladium both have 6 isotopes. Cadmium has 9 isotopes and tin has 11 isotopes. Zinc, gold, iodine and fluorine, these 3 elements are monoisotopic species. इनका एक एक आइसोटोप होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3, आर्सेनिक का भी बेटा एक ही आइसोटोप होता है. यू कैन रिमेंबर दैट एलिमेंट ऑल्सो, जिसका एक आइसोटोप होएगा, आर्सेनिक. ऑलराइट जी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइसोस्टेरी. बेटा this concept is only applicable for molecules. For molecules, they have same molecular mass. These are the species which have same molecular mass and they have same number of valence electrons. Beta, we have an example, N2 and carbon monoxide. Beta, carbon monoxide का mass कितना होता है? MR कितना होता है? Its MR is 12 plus 16, that is 28. N2 means we have 2 nitrogen atoms. It means 2 into 14 equals to 28. ठीक है? So both have same molecular mass. अब इनके valence electrons कितने होते हैं? Nitrogen has 5 valence electrons. 2 nitrogens हैं, तो total कितने हो गए बेटा? 10 valence electrons. कार्बन एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो इन दिस वे इट इज ऑल्सो हैविंग 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो these type of species are called isosteres of each other. ठीक है. So beta, after isostery we have isomers. Isomers are those compounds which have same molecular formula but different structural formula. बेटा जिनका molecular formula तो same होता है but structural formula different होता है. For example, we have C4H10. 4 carbons हो जाएं in a straight line. Each carbon has to make 4 bonds. 4 bonds पे यहां पे तीनों हाइड्रोजन्स आ जाएंगे. 4 bonds कंप्लीट करने के लिए यहां पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे. 4 bonds कंप्लीट करने के लिए we have 2 हाइड्रोजन्स on this side. We have 3 हाइड्रोजन्स on this side. This is called butane. This is butane, जिसका molecular formula है C4H10. In a similar way, अगर मैं इसकी चेन को चेंज कर दूं, 1, 2 and 3 carbons in a straight line, and I'm going to attach a branch with this, that is carbon branch with the straight chain. With this carbon, for completing the valency of this carbon, we have to attach 3 hydrogen with this. With this carbon we have to attach 1 hydrogen. With this carbon we have to attach 3 hydrogens. With this carbon we have to attach 3 hydrogens. So beta यहाँ पे हमने branch में convert कर लिया. Now these 2 different molecules, they have different structures. This is called isobutane. Isobutane, and this is called normal butane. ठीक है. जितनी ज्यादा ब्रांचेस बनती जाएंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. ठीक है. तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा? ऑब्वियसली आइसोब्यूटेन का. ठीक है. सो वी कैन रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द आइसोमर्स ऑल्सो. ठीक है. इनका
फर्दर डिटेल जो हैगी आइसोमर्स की, इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइसोमॉर्फ. बेटा जो आइसोमॉर्फ टर्म है ना, स्पेसिफिकली ज्यादातर यूज की जाएगी आयनिक कंपाउंड्स के लिए. दीज आर द कंपाउंड्स हुज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेम, जिनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो शेप होएगी, जो स्ट्रक्चर होएगा, इट वुड बी सेम. फॉर एग्जाम्पल वी हैव Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट. बेटा इन दोनों की शेप सेम होती है, और ये एक की कॉन्सेप्ट है which we can use to attempt the MCQs. Na2SO4 में एटॉमिक रेशियो सेम होएगी. K2SO4 और Na2SO4 में we have फर्स्ट एटम है जो कि 2 यूज हो रहे हैं, सेकंड एटम आपके पास 1 है, थर्ड एटम आपके पास दोनों में 4 है. दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो. दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि सेम एटॉमिक रेशियो. ठीक है, एटम्स की एटॉमिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं. द अदर एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फ इज जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट. बेटा फर्स्ट एटम कितना है दोनों में, बोथ कंपाउंड्स में फर्स्ट एटम इज 1, सेकेंड एटम कितने कितने यूज हुए हैं, 1, ऑल्दो दे आर डिफरेंट, लेकिन उनकी एटॉमिक रेशियो सेम आ रही है. और थर्ड एटम जो है दैट इज हैविंग 4 एटम्स, सो इनकी भी एटॉमिक रेशियो सेम है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. विच 2 कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर? NaF. तो बेटा इनमें एटॉमिक रेशियो को हम देखते हैं. ऑल्दो दिस इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस मैंने इनकरेक्ट रखी हैं, तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 2 ऑप्शंस जो यहां पे इनकरेक्ट होंगी. फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, NaF. Na एक एटम है, फ्लोरीन एक एटम है. इन द सेकेंड ऑप्शन वी हैव मैग्नीशियम, दैट इज 1, ऑक्सीजन भी आपके पास 1 है. सो दिस इज an example of isomorph. ठीक है, K2Cr2O7, this is 2, this is 2 and this is 7. इसी के साथ we have K2SO4, it is 2, it is 1 and it is 4. तो बेटा यहां पे atomic ratio is different, so this is not an isomorph. ठीक है, this is not an example of isomorphism. Na2SO4 को देखते हैं. अगली एग्जांपल, क्या ये आइसोमॉर्फ है या नहीं है. ऑब्जर्व करें C को. Na2SO4 we have 2:1:4, we have 2:1:4. yes, it is isomorph. ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन को इसी तरह चेक करते हैं, आइसोमॉर्फ है या नहीं एक दूसरे के. we have calcium carbonate 1:1:3. over here we have 2:1:3. so these are not same, so it is again another option जो कि आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर सकती. सो बेटा ये आपके पास एक एग्जांपल को डिस्कस किया है जिसमें दो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं जिनमें आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना कभी भी अपीयर नहीं हो सकता, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम एटॉमिक रेशियो. ऑलराइट, सो द लास्ट कॉन्सेप्ट is isoelectronic species. Beta, iso means same, electronic species, those species which have same number of electrons. Same number of electrons. For example, we have sodium. Beta, sodium has 11 electrons. लेकिन after removing 1 electron, now it converts into 10 electrons. ठीक है? Magnesium के पास total होते थे 12 electrons. After removing 2 electrons, it is carrying a positive 2 charge and we are left with 10 electrons now. Aluminium had 13 electrons. After removing 3 electrons, now it has 10 electrons. So beta, these are called isoelectronic species of each other. अगर यहाँ पे बेटा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आइंस में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, आप यहाँ पे नियॉन को भी साथ ऐड कर सकते थे. नियॉन इज ऑल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, ऑल दीज स्पीशीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया.
अब यहां पे न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझे बेटा, जिस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा और सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज उसका होएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज किसका होएगा बेटा? एल्यूमिनियम आयन का, बिकॉज एल्यूमिनियम 3 positive is having 13 protons but 10 electrons. तो बेटा न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज इस पे ज्यादा है, सो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, एंड देयर इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके शेल में, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होएगा? दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड इन दिस वे द साइज डिक्रीजेस, तो स्मॉलर साइज हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर साइज हो जाएगा आउट ऑफ दीज 3 आयंस। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन दैट इज सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट। चेक करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। विच वन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस? क्वेश्चन नंबर 3, विच वन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस? Na पॉजिटिव, बेटा Na पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो इट हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 protons but it has 10 electrons. Aluminium 3 positive is having 13 protons and 10 electrons. Lithium ion, lithium सोडियम से ऊपर होता है तो यानी कि उसका साइज तो वैसे ही स्मॉल होएगा, because in the group when we are moving from top to bottom, lithium then sodium, सोडियम के पास ज्यादा शेल्स होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इट इज ग्रेटर इन साइज। तो लिथियम तो बिल्कुल भी किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो आउट ऑफ दीज 3 विच वन इज ग्रेटर इन साइज? सो इट मस्ट बी द वन ऑप्शन जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज किसका कम है? सोडियम आयन का। सोडियम आयन का न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगी। सो अट्रैक्शन कम है तो साइज निस्बतन ज्यादा होएगा बाकी दोनों ऑप्शंस के। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द ऑप्शन ए। सो होप सो ये तमाम MCQs आपने डिस्कस किए हैं बेटा। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है MDCAT का, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 2 से 3 MCQs आपके हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो